Good morning, students. Today our topic of discussion is ozone. Ozone the molecular formula क्या है? O3. Ozone, you have heard that there is a layer of ozone around the earth in the stratosphere which protect us from the ultraviolet radiations of the sun. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਹੈ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਪਲੀਟਿਡ। ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੈ? CFCs, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ? ਡਿਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ CFCs ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। CFCs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਐਟ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਫੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ CFC ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CF2, CF2 ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਮੀਥੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ? ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਫ੍ਰੀ ਕਲੋਰੀਨ ਰੈਡੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕਲੋਰੀਨ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ। ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਤਾ? ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ, ਡਿਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ CFCs ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਓਜ਼ੋਨ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ NO2+O2। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਡਿਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਓਜ਼ੋਨ। ਫਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ। ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ obtained when silent electric discharges pass through pure cold and dry oxygen। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ then it will give you ozone। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਾਰਕਲੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ?
क्योंकि ये जिहड़ी है वो लैस हीट रिलीज़ करेगा, तो उन्ना जिहड़ी ओजोन है उसकी डीकंपोजिशन नहीं होएगी। यह रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। डेल्टा एच इत्थे क्या है, पॉजिटिव है, 142 किलो जाउल पर मोल है। तो इस रिएक्शन की जी एंडोथर्मिक होने करके अगर असी एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करूँगे तो यह रिएक्शन बैकवर्ड से चला जाएगा। तो उहदे करके जिहड़ा है वो एनर्जी जिहड़ी है हीट जिहड़ी प्रोड्यूस रिएक्शन के दौरान देनी है वो घट होएगी, तो उहदे नाल जिहड़ा ओजोन है वो ऑक्सीजन दे विच डीकंपोज नहीं होएगा। यह रिएक्शन जिस स्पैशली डिजाइनड ऑपरेटर्स दे विच कीता जांदा दैट इज़ कॉल्ड ओजोनाइजर, उन्होंने ओजोनाइजर बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओजोन इज प्रिपेयर्ड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन दे विच जिहड़ी सेंट्रल ऑक्सीजन है दैट इज sp2 हाइब्रिड है, तो अगर असी इसदी स्ट्रक्चर बनाइए इट वुड बी लाइक दिस। हम इस स्ट्रक्चर दे विच एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एक बॉन्ड लेंथ छोटी होएगी, एक बॉन्ड लेंथ लंबी होएगी, बट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कह रही हैं कि दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो इत्थे क्या बन जाएगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जिहड़ी स्ट्रक्चर बनेगी उहदे विच दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे, इक्वलेंट होंगे। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन की गल करिए तो इट इज पेल ब्लू गैस हैविंग स्ट्रॉन्ग करैक्टरिस्टिक स्मैल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट इट इज पेल ब्लू गैस, लाइट ब्लू कलर की गैस, ठीक है। तो स्मॉल कंसनट्रेशन इट इज़ हार्मलैस, बट एट हाई कंसनट्रेशन जी है ये ब्रीथिंग अनकंफर्टेबल करेगी, उहदे नाल हैडेक वगैरह जी है वो हो सकती। सो इट मीनस एट लो कंसनट्रेशन इट इज़ हार्मलैस, बट एट हायर कंसनट्रेशन it may cause difficulty in breathing, clear, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो असीं कूल करते हैं तो ये डीप ब्लू लिक्विड तो एक वायलेट ब्लैक सॉलिड के विच कन्वर्ट हो जाती है। ऑन लिक्विफिकेशन और ऑन कूलिंग इट कन्वर्ट into deep blue liquid and further violet black solid, ठीक है, क्लियर है। नैक्सट ये जी है एयर नालों हैवी होंगी हैगी, इट इज़ हैवियर दैन एयर and it is slightly soluble in water, ठीक है। and O3 is diamagnetic, means it does not contain any unpaired electron, हालांकि बट ऑक्सीजन जी है वो क्या होंगी हैगी, पैरामैग्नेटिक। सो दीज आर द basic physical properties of ozone. Now let's discuss about the chemical properties of ozone. The first property is कि यह जिहड़ा है लिटमस पेपर पर न्यूट्रल है, मीनस कि इसकी नेचर ना ही एसिडिक है तो ना ही बेसिक है, सो इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, ठीक है। नैक्सट है डीकंपोजिशन बारे डिस्कस करांगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनू ध्यान नाल समझना तुसीं। सी अगर असी ओजोन का रिएक्शन देखिए तो ओजोन जी है वो इस तरह डीकंपोज होएगी, ठीक है। रिएक्शन जोड़ा ये एक्सोथर्मिक होएगा। माइंडेड जोड़ा पिछला रिएक्शन था उस असी ओजोन प्रिपेयर की थी तो वो एंडोथर्मिक था, ये वाला रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक।
ਓਜ਼ੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਟਰੋਪੀ ਚੇਂਜ। ਐਂਟਰੋਪੀ ਮੀਨਸ ਰੈਂਡਮਨੈਸ, ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ देयर ऑफ ऑक्सीजन, 2 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 3 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫॉरवर्ड ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ एंट्रोपी है वो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। इट मीन्स डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नाउ इफ यू हैव रिमेंबर्ड अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन, डेल्टा जी कि इक्वल होंदा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होंदा है। हुण डेल्टा एच कित्थे क्या है, नैगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस आही आएगा। हुण टैंपरेचर जिन्ना मर्जी होवे, डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या हो गया, इट इज स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस मीन्स इट कैन टेक प्लेस बाय इट्स ओन, तो अपना आप हो सकता है। तो इट मीन्स कि जिहड़ी ओजोन है वो थर्मोडायनमिकली अनस्टेबल है, तो यह अपने आप ही ऑक्सीजन च क्या हो जाएगी, डीकंपोज होती जाएगी। एंड दैट्स वाई द हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही, रिलीज हो रही, तो ओजोन जी है कादे विच कन्वर्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी असी ज़्यादा कंसनट्रेशन ओजोन स्टोर करोगे तो उसकी डीकंपोजिशन के दौरान एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी, तो वह क्या हो सकती, एक्सप्लोजिव हो सकती। तो यह क्वेश्चन भी कई बार आ जाता कि ओजोन इज थर्मोडायनमिकली अनस्टेबल, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस होल कि गिब्स एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जिहड़ा ओजोन का डीकंपोजिशन का रिएक्शन है उहदे वास्ते डेल्टा जी क्या आ रहा, नैगेटिव आ रहा, स्पॉन्टेनियस आ रहा, तो इट मीनस कि वह रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। सो हौली हौली जिहड़ा है वह ओजोन है वह डीकंपोज होंदी जाएगी ऑक्सीजन दे विच। नाउ द नैक्सट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ईवन स्ट्रोंगर दैन ऑक्सीजन, ठीक है। सैकेंड नंबर पर आता है फ्लोरीन तो बाद, बट डाई ऑक्सीजन तो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि अगर असी ओजोन को देखिए तो ओजोन किदा डीकंपोज होएगा, O2 प्लस O, ठीक है। यह डीकंपोजिशन ते सानू क्या देगा, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो एटॉमिक ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव, तो यह जिहड़ी है वो जल्दी तो जल्दी दूजे नाल रिएक्ट करके उन्होंने क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। तो यह इस करके जिहड़ी ओजोन है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये क्वेश्चन भी कॉमन है दैट ओजोन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो द रीज़न क्या है कि ओजोन ऑन डीकंपोजिशन क्या देगी, ऑक्सीजन एंड O2 डाईऑक्सीजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन। तो एटॉमिक ऑक्सीजन जी है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, तो उपर भी असी पढ़ लिया कि ये रिएक्शन जोड़ा है जल्दी हो जाएगा। ओजोन जोड़ा है वो जल्दी ही कादे विच डीकंपोज हो सकती, ऑक्सीजन ते एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन जी है दिस इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर ऑफ ओजोन। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ ओजोन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन किद्दां होंदी हैगी, मैं एक रिएक्शन थानू डिटेल च दसदी हाँ, बाकी असी जिहड़े है वो ओवरऑल रिएक्शन ही डिस्कस करांगे। फर्स्ट सी इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट, ठीक है। लेड सल्फाइड नूं काहदे विच चेंज कर रही, लेड सल्फेट दे विच। देखो O3 किद्दां डीकंपोज होएगी, O2 प्लस O, ये असीं हुणी रिएक्शन डिस्कस कीता है। तो ये जिहड़ी ऑक्सीजन है एटॉमिक ऑक्सीजन है वो फर्दर रेड सल्फाइड की क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन। तो PbS प्लस 4O दैट विल गिव यू PbSO4, ठीक है। नाउ अगर असी इस रिएक्शन नूं
बैलेंस करिए ओवरऑल रिएक्शन कैलकुलेट करिए तो इस इक्वेशन असी किन्ने नाल मल्टीप्लाई करांगे 4 ना जो मल्टीप्लाई करूँगे तो ये ऑक्सीजन तो 4 ऑक्सीजन कैंसल बट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन PbS प्लस 4O3 क्योंकि ये 4 सारी इक्वेशन ना मल्टीप्लाई होएगा तो आगे क्या आ जाएगा PbSO4 प्लस 4O2 ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन इन विच सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू सल्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इट ऑक्सीडाइज ZnS दैट इज जिंक सल्फाइड टू जिंक सल्फेट ठीक है। क्या रिएक्शन आएगा सी O3 प्लस ZnS विल गिव यू ZnSO4 प्लस O2 ठीक है। So this is the overall reaction for the oxidation of zinc sulfide to zinc sulfate. Next example, it oxidize HCl to Cl2 ਇਹ HCl ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ Cl2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ HCl ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ HBr ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ Br2 ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। See HCl plus O3 that will give you Cl2 plus water plus oxygen ठीक है। so this is the reaction। यही रिएक्शन अगर HBr लेंदे तो it will oxidize to Br2, अगर HI लेंदे it will oxidize to I2 ठीक है। कुछ ऑक्सीडेशन के रिएक्शनस जोड़े वो हमेशा दिमाग च रखी दे कि किहड़ी चीज़ कादे विच कन्वर्ट होंदी है। उस तो इलावा इट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट्स होंगे NO2 नेगेटिव टू नाइट्रेट्स होंगे NO3 नेगेटिव ठीक है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पोटाशियम नाइट्राइट with reaction on oxygen it get converted into KNO3 plus O2 ठीक है। so this was nitrite and it get converted into nitrate। ऑक्सीडेशन के दौरान जिहड़े नाइट्राइट्स होंगे वो हमेशा नाइट्रेट के विच ही कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट इट ऑक्सीडाइज पोटाशियम आयोडाइड टू I2 KI ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ I2 ਚ। सी KI एक्वा सोल्यूशन लूँगे असी KI ਦਾ बिकॉज KI सॉलिड ਹੁੰਦਾ सॉलिड स्टेट ਚ रिएक्ट नहीं करूँगा। इट विल गिव यू KOH प्लस I2 प्लस O2 ठीक है। नाउ इन दिस रिएक्शन I2 इज रिलीज्ड। यह रिएक्शन जिहड़ा है दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी का एस्टीमेट लगाने वास्ते यूज़ किया जाता ठीक है। सो हाउ इट इज़ डन लिसन केयरफुली। इहदे विच पोटाशियम आयोडाइड नाल जिहड़े सोल्यूशन है दैट इज़ बफर्ड विद बोरेट बफर pH 9.2 दे नाल बफर करके पोटाशियम आयोडाइड नूं एक्सैस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड नूं ओजोन नाल रिएक्ट किया जाता। जो ओजोन नाल रिएक्ट कर रहा पोटाशियम आयोडाइड तो क्या रिलीज कर रहा I2 एंड इट इज़ टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेशन की जाती। टाइट्रेशन तो यू नो दैट कि असी क्वांटिटी जी है वो कैलकुलेट की कर सकते। जो आयोडीन नूं सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेट किया जाता तो उतों जी कैलकुलेशनस है उतों असी आयोडीन की अमाउंट कढ़ लेंगे। जो आयोडीन की अमाउंट आ जाएगी तो बाय स्टोकियोमेट्री साडे कोल ओजोन की अमाउंट भी जी है आ जाएगी। सो दिस इज़ द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। कई बार पेपर क्वेश्चन आ जाता हाउ इज़ ओजोन एस्टिमेटेड। तो दोबारा देखो कि जो ओजोन नूं एक्सैस ऑफ KI पोटाशियम आयोडाइड दैट इज़ बफर्ड विद बोरेट बफर pH 9.2 नाल ट्रीट किया जाता तो आयोडीन लिबरेट होंगी। उस आयोडीन नूं सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेट किया जाता। उस टाइट्रेशन तो बाद असी आयोडीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो कोरसपोंडिंगली ओजोन की जी है उदी भी एस्टीमेशन जी है सानू पता लग जाती। क्लीयर है।
next reaction, it oxidize ferrous salts to ferrous salt किहड़े हुंदे Fe2 positive to ferric salts किहड़े हुंदे Fe3 positive. ठीक है. Now see what would be the reaction. For example, we can take ferrous sulfate FeSO4. These reaction take place in acidic medium. The H2SO4 aqueous solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ use ਕਰ ਰਹੇ dilute, and it will give you Fe2SO4 thrice plus water plus oxygen. ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਜ਼ੋਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ +2 ਮੀਨਸ ਇਹ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ +3 ਮੀਨਸ ਇਹ ਫੈਰਿਕ ਸਲਫੇਟ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਨੇ ਫੈਰਸ ਸੌਲਟਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਫੈਰਿਕ ਸੌਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਓਜ਼ੋਨ नॉन मैटल्स की ऑक्सीडेशन भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल I2 आयोडीन in aqueous medium will give you HiO3. this is called iodic acid. ठीक है जी. and again you will get oxygen. so this is how it can oxidize iodine to iodic acid. इस तो इलावा सल्फर S8 वाटर प्लस ओजोन दैट विल गिव यू H2SO4 प्लस ऑक्सीजन. इन्हें सल्फर नूं कादे विच ऑक्सीडाइज करता, सल्फेट दे विच ऑक्सीडाइज करता. सो दिस इज हाउ इट कैन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स. सिमिलरली इट कैन डू द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स दी ऑक्सीडेशंस भी ये कर सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है, सिल्वर ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸਿਲਵਰ ਪਲਸ ਓਜ਼ੋਨ that will give you silver oxide plus oxygen. ठीक है. mercury, you know that it can also oxidize mercury to mercury oxide plus O2. this is called mercurous ऑक्साइड. ठीक है. तुसी एक प्रॉपर्टी सुनी होनी मरकरी दी दैट इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑफ ग्लास. ये ग्लास नाल स्टिक नहीं होंदा, इसे करके असीं इहनूं थर्मामीटर च यूज़ करदे हैगे. बट ओजोन दे नाल रिएक्ट करन तो बाद जदों मरक्यूरिक ऑक्साइड बनदा तद यह ग्लास नूं स्टिक करना स्टार्ट कर दिंदी. दिस इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जो ओजोन ना रिएक्ट करके मरक्यूरिक ऑक्साइड बनाती तो इट स्टार्ट स्टिकिंग टू द ग्लास. दैट इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी. ठीक है. उस तो इलावा इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट. ये ब्लीचिंग एक्शन का काम भी करती है. ब्लीचिंग एक्शन इज डिपेंडेड अपॉन द ऑक्सीडेशन एक्शन ऑफ ओजोन. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ क्या है कि ਜਦੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕਲਰਿੰਗ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਲਰਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਈਏ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕਲਰਲੈਸ ऑक्सीडाइज्ड मैटर प्लस ऑक्सीजन. बेसिकली ये रिएक्शन भी उसी एटॉमिक ऑक्सीजन का है जिहदे करके इहदा ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन. नेक्स्ट आर यूजेस ऑफ ओजोन. ओजोन दे यूजेस किथे किथे है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. इट इज यूज्ड एज डिसइनफेक्टेंट एंड जर्मीसाइड. डिसइनफेक्टेंट एंड जर्मीसाइड पानी नूं भी साफ करने वास्ते किहदा यूज़ किया जाता, ओजोन का यूज़ किया जाता. ओजोन उत्थे एज अ डिसइनफेक्टेंट यूज़ करते हैं फॉर स्टरलाइजिंग वाटर.
उस तो इलावा इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ डेलिकेट फाइबर, फॉर द ब्लीचिंग ऑफ डेलीकेट सॉफ्ट फाइबर्स जिदा वूल्स वगैरह सिल्क वगैरह है उन्हां दी ब्लीचिंग वास्ते इन्हों यूज़ किया जाता। तो इस तो इलावा इट इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई द क्राउडेड प्लेसेस लाइक सिनेमा हॉल्स। ठीक है, यह डीकंपोज होकर क्या देगी, ऑक्सीजन देगी। जो क्राउडेड प्लेसिस है उत्थे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, तो इस करके उत्थे दी एयर नू प्योरीफाई करने वास्ते ओजोन जिहड़ी है वो यूज़ की जाती। इस तो इलावा यह जिहड़ा यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होंदा हैगा, तो डिटैक्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये तुसीं 11th क्लास भी पढ़िया वा ओजोनोलिसिस वगैरह, डबल बॉन्ड की डिटैक्शन वास्ते अनसैचुरेशन दी। इट इज़ यूज्ड फॉर द पोजीशन ऑफ कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड कित्थे प्रेजेंट है, ये असीं 11th क्लास ऑर्गैनिक केमिस्ट्री च कीता वा। पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओजोन। असीं डिस्कस कर लिया कि ओजोन दे यूजेस क्या है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, इनी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। थैंक यू।